Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we see the topic that is the electrical temperature measurement. In previous lecture, we see non-electrical temperature measurement device like bimetallic thermometer, liquid in glass thermometer and pressure thermometer. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basics of electrical temperature measurement instrument. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Here we see platinum resistance thermometer. Now here we see working principle. It works on the principle of positive temperature coefficient of resistance. इसका मीनिंग क्या होता है? When temperature increasing, then the resistance of material will also increase, which is calibrated in terms of temperature by using Wheatstone bridge circuit. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक platinum resistance thermometer that is a PRT. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है दैट इज अ प्लैटिनम एलिमेंट कॉइल, इसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है. तो इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. और ये जो वायर के दो टर्मिनल किसको कनेक्ट किए रहते हैं? टू द वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, मतलब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या होगा? अनबैलेंस होगा. And the reading of Wheatstone bridge circuit is calibrated in terms of the temperature that we have to be measured. That is the working principle of platinum resistance thermometer. Now here we see the construction. So it consists of hollow ceramic former. Hollow ceramic former मतलब आपको ये दिख रहा है. This is called as a hollow ceramic former on which platinum wire whose resistance vary with temperature. इसके ऊपर में क्या बाउंड किया जाता है? होलो सिरेमिक फॉर्मर के ऊपर में प्लैटिनम, ओके, हुज रेजिस्टेंस विल वेरी विद टेम्परेचर. तो इसी वायर का क्या होगा? रेजिस्टेंस वेरी होगा विद टेम्परेचर. ओके, द असेंबली इज एनक्लोज इन अ प्रोसेलिन शीट. तो ये जो पूरी असेंबली जो है सिरेमिक फॉर्मर और प्लैटिनम वायर की, इसको किसके अंदर में रखते हैं? प्रोसेलिन शीट के अंदर. तो इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोसेलिन शीट. टू कॉपर आर वायर आर वेल्डेड ऑन सिरेमिक फॉर्मर. तो ये क्या है? दो कॉपर वायर है, इसको क्या किया है? यहाँ पे वेल्ड किया है ऑन द सिरेमिक फॉर्मर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर. तो ये दोनों जो कॉपर लीड है या फिर कॉपर वायर है, ये किस लिए कनेक्ट किए हैं यहाँ पे? फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लैटिनम वायर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. तो ये जो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे अपन ये किसकी वजह से करेंगे? इट इज विद द हेल्प ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. So that is the construction of platinum resistance thermometer. Now when temperature is provided to the sensing member of RTD, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है प्लैटिनम वायर का क्या होगा? इंक्रीज होगा. Why increase? Because of positive temperature coefficient of resistance. ये इनिशियली मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल में बताया था. पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा? इस प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. अभी ये जो प्लैटिनम वायर जो है ये किसको कनेक्ट है? इट इज कनेक्टेड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का जो अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या आ रहा है? आपके वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आ रहा है. So that voltage is calibrated in terms of the temperature. मतलब indirectly we can measure the temperature with the help of the resistance temperature detector or platinum resistance thermometer. So this is all about platinum resistance thermometer or resistance temperature detector. Now we see the advantages of resistance temperature detector or platinum resistance thermometer. So it can be used for wide range of temperature from 2000 degrees Celsius to 10,000 degrees Celsius. It has a linear characteristics. मतलब क्या होगा? जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा?
resistance also increasing. That is called, it has a linear characteristic. It has plus minus 0.15% एक्यूरेसी. इसका मीनिंग क्या होगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर हो रहा है या फिर 2000 डिग्री सेल्सियस मेजर हो रहा है तो एक्यूरेसी कितनी रहेंगी, 0.15%. मतलब 2000 इंटू 0.15 इतना क्या रहेगा, उसमें चेंजेस हो सकता है. इंस्टॉलेशन इज इजी. इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, इजीली आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो. नाउ वी सी द लिमिटेशंस ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर. फर्स्ट, रिस्पॉन्स इज स्लो. सेकंड, बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज टेक्स टाइम. थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ करंट लीकेज बिटवीन रेजिस्टेंस एलिमेंट एंड ग्राउंड अफेक्टेड बाय शॉक्स एंड वाइब्रेशन. तो रिस्पॉन्स इज स्लो मतलब क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स स्लो रहता है, मतलब बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग स्लोली. बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज टेक्स टाइम. बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज टेक्स टाइम मतलब जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वोल्टेज क्या होगा, क्या ये होगा, वेरी होगा. और जैसे ही टेम्परेचर लेस हो रहा है तो ब्रिज को बैलेंस होने के लिए समय लगता है. पॉसिबिलिटी ऑफ करंट लीकेज बिटवीन रेजिस्टेंस एलिमेंट एंड ग्राउंड मतलब जहां पे रखा जाता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ अ करंट लीकेज. अफेक्टेड बाय शॉक्स एंड वाइब्रेशन. जहां पे शॉक्स एंड वाइब्रेशन है वहां पे देयर इज अ चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी इन द रीडिंग. इट डज नॉट गिव टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बट गिव्स टेम्परेचर ऑफ स्मॉल एरिया. ये कोई भी अगर एक पॉइंट का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्मॉल एरिया, और वहां का आप टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हो. तो दैट आर द लिमिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. नाउ वी सी टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मिस्टर. तो थर्मिस्टर मतलब क्या होता है, आर कंपोज ऑफ सिंटर. सिंटर मतलब क्या होता है, पाउडर्ड मिक्सचर. और सिंटरिंग मतलब क्या होता है, पाउडर मिक्सचर को प्रेशराइज करके या फिर हीटिंग करके उसको एक कॉम्पैक्ट सॉलिड बनाना, इसी को ही बोलते हैं सिंटर्ड मिक्सचर. तो किसका सिंटर्ड मिक्सचर है, थर्मिस्टर ऑक्साइड, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, आयरन एंड यूरेनियम का पाउडर मिक्सचर है. पाउडर मिक्सचर को आपने क्या किया है, सिंटर्ड किया है, मतलब उसको प्रेशर अप्लाई किया है, हीट अप्लाई किया है और एक कॉम्पैक्ट सॉलिड बनाया है, उसी को ही बोलते हैं थर्मिस्टर. These metallic oxides are mild, mixed and appropriate proportion. तो ये जो भी ऑक्साइड्स है, मैग्नीज ऑक्साइड, निकेल, कोबाल्ट, आयरन एंड यूरेनियम, इसको अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, प्रेस किया जाता है इनटू द डिजायर्ड शेप विथ अप्रोप्रिएट बाइंडर्स. बाइंडर्स मतलब जो एक में को पकड़ के रखते हैं. एंड फाइनली सिंटर्ड. सिंटर्ड मतलब आप प्रेशर अप्लाई करके बाइंडर्स इसमें मिक्स करके एक सॉलिड बना रहे हो, उसी को ही बोल रहे हैं आप थर्मिस्टर. Now, electrical terminals are either embedded before sintering or back afterward. तो ये जो आपको थर्मिस्टर दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड सिंटर्ड किए जाते हैं या फिर बैक मतलब इसको पेस्ट किया जाता है आफ्टर सिंटरिंग ऑन द थर्मिस्टर. Electrical characteristics are controlled by varying the types of oxide used and physical size and the configuration of a thermistor. तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है ये थर्मिस्टर का कैसे वेरी किया जाता है, बाय वेरिंग द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड यूज एंड फिजिकल साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थर्मिस्टर. मे बी शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, डिस्क एंड वॉशर. बिट्स, डिस्क मतलब राउंड डिस्क, और वॉशर और रॉड्स के फॉर्म में इसको फॉर्म किया जाता है. नाउ हियर वी सी द वर्किंग. थर्मिस्टर फॉर्म वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एज शोन इन फिगर. तो ये जो थर्मिस्टर के जो दो टर्मिनल है ये कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं, ऑन वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. मतलब इट एक्टिंग एज द वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. Now, change in resistance due to change in temperature is a negative. That is, as the temperature increases, the resistance goes down and vice versa.
तो इसका जो कोएफिशिएंट रहता है ये क्या रहता है, निगेटिव कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी को ही बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, तो ये थर्मिस्टर का कोएफिशिएंट क्या रहता है, निगेटिव रहता है। चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब अभी जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा मतलब रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज होगा, चेंज होगा मतलब इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड, ये जो चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन द टेम्परेचर, ये कौन मेजर कर रहा है, मेजर बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट विच इज डायरेक्टली कैलिब्रेटेड एज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो अभी ये रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण ये वोल्टेज में भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। तो दैट वोल्टेज इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द temperature that we have to be measured with the help of the thermistor. Now advantages of thermistor: small and compact, having high sensitivity. It can be used for low temperature measurement with great accuracy. जहां पे आपको लो टेम्परेचर मेजर करना है वहां पे थर्मिस्टर का यूज होता है। It is physically strong and rugged. Low cost. Limitation: it has a non-linear characteristics. Why? Because when a temperature is increasing the resistance is decreasing, that is a non-linear characteristics. That's why I am writing here limitation में it has a non-linear characteristics. Require external energy source, अभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को क्या करना है, पावर सप्लाई देना है। That's why it required the external energy source for measuring the temperature. Limited to temperature measurement up to 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्मिस्टर है कितने डिग्री सेल्सियस तक यूज हो सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज हो सकता है। एप्लीकेशन: टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन, थर्मल कंडक्टिविटी में। The unit outcome that we achieved in today's lecture are: choose the relevant instrument to measure the temperature of the given system with justification. Today we see electrical temperature measurement device like RTD and thermistor. The various program outcome that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. The important question asked in MSBT exam are: explain temperature measurement using thermistor. Second, what is platinum resistance thermometer, how temperature is measured, or explain construction and working of RTD. Next lecture we see thermoelectrical method of temperature measurement. Thanks. For any query contact to this number.